हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हाउ इट वर्क्स we'll see in question number 1 itself. So in question number 1 they given you the x axis where they given you the marks also. The mark starts from 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. But you see carefully from 0 to 20 mark difference is there. Then again it is 10 mark difference are there. So in your textbook they are given you pink mark like this way. Again if you see on the y-axis, it is the number of students. Where from 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, it is given to you like this way. They are given on the scale also in your textbook. We'll just see how the frequency polygon works on the question number 1. So between 20 to 30 means 25. They have made a mark here. They have made a straight line up till 35 to 20. 35 है मेरा x एक्सिस का नंबर, 20 है y एक्सिस पे जो नंबर आता है वो 35 का मतलब 30 और 40 के बीच वाला नंबर। अगेन नेक्स्ट नंबर इज 40.40, तो 40 और 50 के बीच में वाला x वाला नंबर, 40 का y वाला नंबर। अगेन 50 एंड 60, तो 50 एंड फिर 60 का बीच में वाला 55 हो गया 55 और ये 50। In the same manner, these numbers are there like this way. We start straight away jump with the question number 1. What is being given to you all in the textbook? Question number 1 में यह पूछा गया which class has the maximum number of students? कौन से क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दिखाई देता है? So स्टूडेंट्स देखो, ये स्टूडेंट्स y एक्सिस पे कौन सा ज्यादा दिखाई देता है? ये। So my question number 1 का first answer it will be like this way. Maximum number of student presents is in the group of which you can say maximum number of students are in group. कौन से ग्रुप में दिखाई देते हैं? 60 है। 60 कहां पे दिखाई देता है? बिटवीन 60 टू 70। 65 दिया हो ना, 65 का मतलब हो गया क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब हो गया मिडिल नंबर। किसका मिडिल नंबर है ये? 60 और 70 का बीच में वाला नंबर है 65। तो मेरा ग्रुप कौन सा हो गया? 60 टू 70। समझ में आया? तो 60 टू 70 के ग्रुप में बीच वाला नंबर हो गया 65, हो गया एक्स एक्सिस। स्टूडेंट कितना ज्यादा है? 60 सबसे ज्यादा ये ग्रुप में दिखाई देता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 आ गया। Now in question number 2, what they have told you, write the class which have 0 frequencies. So the class which is having 0 frequencies कहां पे दिखाई देता है? 20 to 30 देखो 0 स्टूडेंट्स है और लास्ट में 90 to 80, 90 to 100 0 स्टूडेंट्स है ना? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है कहां पे टच होता है? ये लाइन एक्स एक्सिस पे टच होता है। तो एक्स का नंबर है 20 से 30 के बीच में 25। वाई का क्या नंबर है? अंडा, क्योंकि इट इज देयर ऑन ऑरिजिन। जीरो का वाई का 0 का हुआ तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? 0। सो कैन राइट इट डाउन। The class 20 to 30 and 90 to 100 have no students. So got the concept clear? We are writing like this way. The class 20 to 30 and 90 to 100 have no students, or you can tell it they have 0 frequency. You can, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, in the same manner you can write it down. The class 20 to 30 and 90 to 100 has 0 frequency. Now let's see to question number 3. Question number 1 का सब part 3. What is the class mark of the class having frequency of 50 students? 50 स्टूडेंट्स कहाँ पे दिखाई देता है? 50 स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है 50 स्टूडेंट्स। और इसका क्लास मार्क क्या? 55। 55 यानी किसका मिडिल का नंबर हो गया? 55। इट कम्स इन बिटवीन 50 एंड 60। So you can write it down.
थर्ड आंसर क्लास विच इट इज, क्लास इज 55। मिडल नंबर हो गया ना, किसका मिडल नंबर हो गया ये 50 to 60 का मिडल नंबर हो गया एक्स एक्सिस पे, बराबर है। तो वी कैन राइट इट डाउन द आंसर क्लास 50 to 60 have frequency of 50 students, like this way you can write it down. Now write the fourth question, write the lower and upper class limit of the class whose class mark is 85. 85 देखो कहां पे दिखाई देता है 85, if you see on the graph book, it's in your text book, 85 is here, between 80 to 90 is 85. What is the question they have told you? कि you have to write down the class, so the answer is easy, you can write it down. 85 is the class mark of the group, 85 is the class mark of group, किसका रहेगा ये 85 किसका बीच में आता है 80 to 90 के बीच में आता है। So it is like this way you have to write down the answer. So this is my answer number 4, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर नंबर 4 हो गया ये। And you don't have to write on the graph here, just I am showing you, you can have to write down in your notebook, ग्राफ के नीचे आंसर लिखने का है, ग्राफ पेपर के अंदर मत लिखो, otherwise some student they might do the graph work also and in middle only they will start to write the answer. It is not like this way, just because it is a board I am writing it here. Now question number 5, how many students are there in the class 80 to 90? 80 to 90 में कितने बच्चे दिखाई देते हैं 15। तो आंसर नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन क्लास 80 to 90. So like this way it is very much easy. You have to just answer of the question what is being given to you in your test book. So now we have completed question number 1. We will see to the next question, question number 2. So in practice set 6.5 में question number 2, they are given you the tables of electricity bill and the number of families. We have to draw frequency polygon here. तो स्टार्टिंग नंबर टेबल में they have started with 0 to 200, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 240, बाद में 200 to 400, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 300. So like this is the frequency and the table is being given to you. अब हम लोग क्या करेंगे पता है, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, डिफरेंस कितने का है ये 200 का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है 0 से 200, तो उसके ऊपर हम लोग ने लिखे -200 से 0, तो -200 से 0 हो गया यहाँ पे 200 का डिफरेंस, और -200 और 0 का बीच में वाला नंबर क्या है -100, वो हो गया मेरा क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी अभी आ गया मेरा 0, तो फिर मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या हो गया -100, 0. गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? सो -100 इट विल बी टचिंग ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब y का वैल्यू आएगा 0, मीन्स फ्रीक्वेंसी 0. तो दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, हम लोग 0 ही लेते हैं, कंपल्सरी इट इज. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर -100, 0. बाद में 0 to 100 का बीच में वाला नंबर है 100, यानी क्लास मार्क 100, फ्रीक्वेंसी 240, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या हो गया 100, 240. रिजल्ट दिस पे. नेक्स्ट वन 200 to 400, उसका मिडिल नंबर क्या है 300, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 300, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या हो गया 300, 300. नेक्स्ट 400 to 600 का मिडिल नंबर है 500, फ्रीक्वेंसी दिया है 450, तो फिर मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या हो गया 500, 450. इट इज लाइक दिस वे. देन 600 to 800 to 700 given 350 frequency, coordinates of points is 700, 350, and here you have to go it on like this way. लास्ट अभी हम लोग देखते हैं
800 to 1000 तक ही दिया हुआ हम लोग को। बाद में यहाँ पे एंडिंग में भी एक्स एक्सिस पे वो जो पॉलीगॉन है फ्रीक्वेंसी लाइन है टच होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने उसका बाद वाला भी निकाला 1000, 1200, मिडल नंबर आएगा 1100, फ्रीक्वेंसी इज 0 नॉट गिवन, तो फिर हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 1100, 0। सो ये टेबल आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट कॉलम इज देयर ऑफ क्लास, नेक्स्ट कॉलम आएगा मिड टर्म का मतलब हो गया क्लास मार्क, मिडल नंबर, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, बाद में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उसमें दोनों का वैल्यू आएगा, क्लास मार्क का भी और फ्रीक्वेंसी का भी। नाउ वी विल सी टू द ग्राफ हाउ वी विल represent all the things on the